اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی، غزہ میں عبوری حکومت کے قیام کے انعقاد بھی شامل۔ قرارداد کے حق میں 14 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں کوئی بھی ووٹ نہیں آیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی مندوب نے سلامتی کونسل میں پاکستان، مصر، قطر، اردن، سعودی عرب، UAE، ترکیہ، انڈونیشیا سے اظہار تشکر کیا۔ امریکی مندوب نے کہا، آج تاریخی اور تعمیری قرارداد منظور ہوئی۔ قرارداد کی منظوری دہائیوں سے جاری خون خرابے کے خاتمے کی جانب قدم ہے۔ البحرین مندوب بولے، فلسطینی عوام سے انصاف کیے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ فلسطینی عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضہ منظور نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا ٹرمپ کے غزہ کے منصوبے کا خیر مقدم۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا، صدر ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ امن معاہدے سے غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہوا۔ پاکستان نے غزہ منصوبے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ہمارا بنیادی مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام اور غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء ہے۔ اس منصوبے سے غزہ میں امن کی امید سامنے آئی ہے۔ مذاکرات میں پاکستان نے عرب ممالک کے پروپوزل کی حمایت کی۔ ہم نے پروپوزل میں اپنی تجاویز کو بھی شامل کیا۔ غزہ میں 2 سال میں 69,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ ان شہداء میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ہمارا مقصد ہے۔ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ناقابل یقین ووٹ پر دنیا کو مبارکباد۔ بورڈ آف پیس کو تسلیم اور اس کی توثیق بھی کر دی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ سوشل ٹروتھ پر پیغام لکھا، بورڈ آف پیس میں دنیا بھر کے طاقتور اور قابل اعتماد رہنما شامل ہوں گے۔ آنے والے ہفتوں میں بورڈ ممبران اور بہت سے مزید دلچسپ اعلانات کیے جائیں گے۔ یہ اقدام پوری دنیا میں مزید امن کا باعث بنے گا۔ ٹرمپ کا پاکستان سمیت امن منصوبے کی حمایت کرنے والے تمام ممالک سے اظہار تشکر۔ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد کو مسترد کر دیا۔ حماس کی جانب سے کہا گیا، سیکیورٹی کونسل کی غزہ سے متعلق قرارداد فلسطینیوں کے حقوق اور مطالبات پوری نہیں کرتی۔ یہ قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی اسے غیر جانبدار نہیں رہنے دے گی۔ حماس کا کہنا تھا، غزہ میں انسانی امداد کا انتظام اقوام متحدہ کے زیر نگرانی فلسطینی اداروں کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، اسرائیل کی جنگ بندی کے باوجود غزہ میں جارحیت جاری ہے۔ اسرائیلی ڈرون حملے سے بچے سمیت 2 فلسطینی شہید۔ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو اسرائیلی جارحیت کے ساتھ سرد موسم کا بھی سامنا ہے۔ غزہ حکام کے مطابق طوفان کے دوران 10,000 خیمے بہہ گئے۔ اسرائیل نے امدادی سامان کی ترسیل روک دی۔ بے گھر خاندانوں کے لیے 3 لاکھ خیموں کی ضرورت ہے۔ اکتوبر 2023 سے 94 فلسطینی قیدی اسرائیلی حراست میں شہید ہوئے۔ تو دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد انسانیت کے خلاف جرائم کی مجرم قرار پائے۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کے 3 رکنی بینچ نے سزائے موت سنائی۔ فیصلہ حسینہ واجد کی غیر موجودگی میں سنایا گیا۔ طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کے الزامات درست قرار۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزما اور پولیس چیف بھی شریک مجرم قرار۔ اسد زما کو سزائے موت کا حکم۔ سابق IG چودھری عبداللہ مامون بھی مجرم قرار، 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد انسانیت سوز جرائم کی مرتکب قرار۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے کئی ماہ تک چلنے والے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ شیخ حسینہ واجد کو 1 مقدمے میں موت اور 3 میں عمر قید کی سزائیں سنائی گئی۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزمان کو بھی سزائے موت سنائی گئی۔ ڈھاکہ میں جسٹس غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ مقدمے کے دلائل 23 اکتوبر کو مکمل ہوئے تھے۔ سابق IG پولیس چودھری عبداللہ المامون نے صحت جرم قبول کیا اور وہ سلطانی گواہ بن گئے۔ رواں سال BBCI نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے فون کی ایسی آڈیو کی تصدیق کی جس سے پتہ چلا کہ طلبہ تحریک کو چلنے کا حکم ان کا ہی تھا۔
अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों के मुताबिक गुज़श्ता साल बांग्लादेश में मुज़ाहिरों के दौरान 1400 अफराद जाम बहक हुए। सैकड़ों मुज़ाहिरीन की हलाकतों की मास्टर माइंड हसीना वाजिद को करार दिया गया। शेख हसीना इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से भारत में रिहाइश पजीर है, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल भी रोपोश हैं। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, आज़ाद कश्मीर में फिर तब्दीली आ गई। पीपल्स पार्टी के नामजद करदार राजा फैसल मुमताज कानून साज असम्बली के नए कायदे ऐवान मुंतखब। वज़ारत उस्मा का हलफ आज उठाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की शिरकत भी मुतवक्के। मौजूदा असम्बली की मुद्दत में ये वज़ीर आज़म की चौथी तब्दीली है। 2021 में PTI के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म बने, जो 9 माह में मुस्ताफ़ी हो गए। PTI के सरदार तनवीर इलियास अप्रैल 2023 में तौहीन अदालत पर नाअहल हुए। फिर चौधरी अनवारुल हक ने मनसब संभाला। 4 साल में 3 वज़ीर आज़म की छुट्टी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। राजा फैसल मुमताज 6 माह के लिए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। राजा फैसल मुमताज राठौर 36 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हो गए। मुखालफत में 2 वोट कास्ट हुए। पुगदोश वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने ऐवान में अलविदाई खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि यहाँ नेपाल बनाने की कोशिश की गई। मुझे कहा गया कि आपको बख्तरबंद गाड़ी में PC होटल लेकर जाएंगे। मैंने कहा अगर ऐसे मौत लिखी है तो ऐसे ही मिले। PTI आज़ाद कश्मीर तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनी, जबकि क़यादत ने तहरीक अदम एतमाद के तमाम प्रोसेस को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए बागी अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से अहम ऐलानात। असम्बली में पहले खिताब के दौरान सेक्रेटरीज की 20 आसामियां खत्म। 1 से ज़ायद गाड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। कहा जिस सेक्रेटरी या ऑफिसर के पास दूसरी गाड़ी होगी वो ओहदे से हाथ धो बैठेगा। सिविल सेक्रेटरीट में सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरीज की जुमला असामियां भी खत्म कर दी। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, सरकारी मुलाजमतों के बराह रास्त कोटे और महकमा जात के बराह रास्त कोटे को भी कम करने का ऐलान। पब्लिक सर्विस कमीशन 1 माह के अंदर इम्तहानात लेकर अहल उम्मीदवारान का इंतखाब करने का पाबंद होगा। वज़ीर आज़म बुसरा, चीफ सेक्रेटरी, सरबराहान महकमा हर जिले में खुली कचहरियां लगाएंगे। स्केल 1 के तमाम आर्जी मुलाजिम मुस्तकिल करने हैं और उन्हें महकमों की जानिब से 1 इजाफी तनख्वाह देने। आम सजाओं में कैदियों की सजा में 2 माह की माफी का भी ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का मामला। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुताल्लिक़ महफूज फैसला जारी करते हुए बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादिम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका विंग को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा वज़ीर आला पंजाब की तरह सिंध, बलूचिस्तान और KP के साथ भी पार्टनरशिप हम करेंगे। जो रकम दरकार है वो हम आपको मुहैया करेंगे। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो रेलवे को 4 चांद लगेंगे। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें ताकि हम पाकिस्तान को रेलवेज के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे। हवाई अड्डे पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन के अलावा शालीमार एक्सप्रेस, जदीद मुसाफिर खानों और लाउंजेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा अवाम को जदीद सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। कैंट रेलवे स्टेशन को जिस तरह रिफर्बिश किया गया है, कराची के अवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर एक मंसूबा है। उसके लिए हम मिलकर पूरी कोशिश अपनी जारी रखेंगे और मुझे यकीन है कि जल्द ये मंसूबा जो है ये इंशाअल्लाह ये एक रियलिटी बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल के घर गए, जहाँ उन्होंने MNA को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी। वो नवाबज़दा जाम अकरम अली और प्रिंस जाम कायम अली की रिहाइश गाह पहुँचे। इस मौके पर वफाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, मुआविन ख़ुसूसी तलहा बरकी भी वज़ीर आज़म के साथ थे। मुलाकात में 2 ममालिक के कराची में मुक़य्यम कौंसल जनरल्स भी शरीक थे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची का दौरा मुकम्मल करके ख़ुसूसी तैयारे से वापस रवाना हो गए। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है MQM बल्दियाती निज़ाम के लिए कोशा है। हमने आईनी तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तजावीज़ दी।
यकीन दहानी कराई गई कि अगले बिल में हमारी तजवीज़ शामिल की जाएंगी। MQM ने निचली सतह पर मसाइल का आईनी हल निकाला है। पीपल्स पार्टी हमारे बिल को 27वीं आईनी तरमीम में सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी। MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा थी। 27वीं तरमीम में बहुत से नकात थे जिन्हें पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं किया। MQM की सियासत खत्म हो चुकी, इनके सारे हरबे नाकाम हो चुके। मस्बत सियासत करें, इल्जाम तराशी और नफरत की सियासत बंद करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफा कमाल को जवाब कहा। MQM की मुर्दा सियासत एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश हो रही है। MQM ने बलदियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। उनको पता था कि लड़ेंगे तो हार जाएंगे। 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई। तो अगर MQM के नजर में था तो उस वक्त MQM ने क्यों नहीं रेज किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है, हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था। अगर MQM ये समझती थी कि जी उनका अहम मुतालबा था जो कि नहीं आया तो फिर MQM तो वोटों में भी साथ थी। अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। आपने आज भी PFC की बात की। PFC के लिए नासिर शाह साहब जब मिनिस्टर थे तो 20 जुलाई 2023 को PFC अमल में आ चुकी है कि MQM जिनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है वो बराए मेहरबानी अपनी इंप्रूवमेंट करें, आपस की लड़ाइयां खत्म करके आगे आएं और अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले चलें, पब्लिक की पॉलिटिक्स करें। सिचुएशनल कोर्ट्स जो हैं वो उसमें आई हैं, उस पर हमने एग्री किया है। जिन जिन चीजों पे हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे 18वीं तरमीम के उस पे या हमें जो है सूबाई खुद मुख्तारी हो या NFC अवार्ड जिस पे हमें रिजर्वेशंस थे, हमने इसको नहीं एग्री किया। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ट्रम्प का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारी फरोख्त करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रम्प की जानिब से कहा गया, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 तैयारी फरोख्त करेंगे। हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म की। अमरीका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के रूप में जराइम पेशा अफराद आए जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजेंगे। वेनेजुएला में गैंग बदतरीन है और मुझे वो हुकूमत पसंद नहीं जो मुल्क चला रही है। वेनेजुएला से निपटने के हवाले से अभी तक कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर वर्ल्ड कप तैयारियों पर काम कर रहे हैं। अमरीका में लोगों को बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिलेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, मार के हक में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग के 4 घंटों बाद ही भारत सीज फायर की दरख्वास्त करने लगा। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। नौजवानों ने भी सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। बदलती दुनिया में पाकिस्तान का अहम किरदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। The country has to its credit 90,000 lives laid down in the war against terrorism. No other country can claim that they've lost hundreds of billions of dollars. There was immense diplomatic engagement at the level of the Prime Minister, at the level of the Field Marshal, at the level of the Deputy Prime Minister. And I think that constant engagement really helped us prove our point to the world. So when I say that the world was changing, but Pakistan also changed. And you've seen that we have had a lot of visits this year. We hosted the SCO Summit, Heads of Government Summit, after 14 years. Strategic Mutual Defense Agreement taking place with Saudi Arabia, which was, I think,